Hi everyone, welcome back. Myself Divya Tamrika. Today we are going to learn chapter 8, a treat for mosquitoes. In my first video of this chapter, we will know about the malaria. Four students are talking with each other: Rajat, Kirat, Aarti and Nancy. They are ask Rajat that why he absent in school for many days. So Rajat told them that he met malaria by the mosquitoes. And one thing we taught that all mosquitoes do not spread malaria, only a special mosquito that has a female Anopheles mosquito spread malaria, and it is detected by the blood test. मलेरिया का जो सिम्टम्स होते हैं उसके होने के बाद जब ब्लड टेस्ट किया जाता है तब पता चलता है कि उससे मलेरिया है या नहीं. And this is the medicine for malaria, which is made by the cinchona tree, bark of cinchona tree. And here Aarti told that he had anemia and also it will detect by the blood test. आरती को भी ब्लड टेस्ट लिया गया था, आरती का भी, और उसे उस ब्लड टेस्ट में पता चला था कि उसे एनीमिया है. सो एनीमिया दिल्ली के स्कूल में कॉमन हो गया था 2007 में. वहाँ पे डॉक्टर्स गए, वहाँ पे उन्होंने सब चिल्ड्रंस के चेकअप किए और उन्होंने उन्हें एक प्रॉपर डाइट दिया, उनके हेल्थ कार्ड बनाए एंड आयरन के टैबलेट्स भी दिए. So here you can see the medical clinical pathologic report, which is shown that Aarti is infected by अमोनिया. आरती को एनीमिया हुआ है. सो जब आरती का फर्स्ट टेस्ट हुआ था इन 20 जून 2007. सो आरती के ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई थी एनीमिया में, और उसका जो रेशियो था वो था 8 ग्राम, जो कि नॉर्मल होना चाहिए 12 to 16 ग्राम. जब उसने आरती ने उनके डॉक्टर ने जो उसे ग्रीन वेजिटेबल्स खाने कहा था, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड आंवला, जैगरी, सो उसका हीमोग्लोबिन का लेवल 10.5 हुआ, जो कि वो थोड़ी सी ठीक हुई. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इन्फेक्टेड report and this is the normal report. So here we have to be aware from the things that spread malaria. So here it is a poster that are told us that are you inviting mosquitoes? So beware, they spread malaria, dengue and chikungunya. What things? That if you collect water around you and leave them from 1 to 2 weeks, the malaria mosquitoes are giving birth to the new baby. So don't let water collect around you, fill up the peaks. हमारे अगल बगल कभी किसी भी रीज़न से जब गड्ढा हो जाते हैं तो उसमें बारिश का पानी जमा हो जाता है और कुछ दिन तक वो बारिश का पानी वैसा का वैसा ही रहता है, और वो एक फेवरेबल प्लेस होता है मॉस्किटोज़ के रिप्रोडक्शन के लिए. वो वहाँ पे अपने एग्स ले कर देते हैं, मतलब अंडे वहाँ
छोड़ देते हैं और इस तरीके से फिर वो डेवलप होने लग जाते हैं. Keep the water pots cooler and tank clean. They should dry it every week. हर week कूलर, वाटर टैंक्स और पॉट को क्लीन करना चाहिए. Put fish in the pond so that they eat the mosquitoes larva. पॉन्ड जो होते हैं जिनको हम एवरी वीक क्लीन नहीं कर सकते, सो वी हैव टू पुश फिश इन दैट बिकॉज every fish eat mosquitoes larva. Use mosquito net to protect yourself. Spray oil if water has collected at some place. So this is the some uh, things or some precautions which you take for malaria. So Rajat said the poster says something about larva. What are those? So Nancy told they are baby mosquitoes, but they don't look like mosquitoes at all. See, it is the mosquito's larva. It doesn't look like the adult mosquito. It look small and they have a small tail also. उनकी छोटी सी एक पूंछ होती है जिनसे वो मूवमेंट करते हैं और वो बिल्कुल भी अदर मॉस्किटोज की तरह, नॉर्मल जो मॉस्किटो होते हैं उनकी तरह नहीं दिखाई देते. So Aarti asked, where did you see them? Nancy, there was an old pot laying behind our house. It was full of water for some days. When I looked there, I saw some tiny thread-like grey things swimming. I was surprised when Mummy told me that this has come out for the eggs which mosquito lay in water. They are called larvae. I also heard something about this on radio. So Rajat asked, what did you do? Nancy told him. Papa immediately threw away the water. He cleaned and dried the pot and keep it upside down so that no water would collect. So लार्वा जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं. ये एडल्ट मॉस्किटो जो हमें बाइट करते हैं वैसे नहीं दिखाई देते. वो थोड़े से ट्रांसपेरेंट होते हैं और ग्रे कलर के होते हैं. उनकी छोटी सी टेल होती है जिससे वो मूव करते हैं. सो आरती ने पूछा कि तुमने इसे कहाँ देखा? तो नैन्सी ने बताया कि उसके घर के पीछे एक छोटा सा पॉट, पुराना जो पॉट जो वो यूज़ नहीं कर सकते थे वो रखा गया था. उसके अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसने देखे तो उसकी मॉम ने उसे बताया कि ये मॉस्किटोज़ के एग से बाहर निकले हैं. सो उसके फादर ने उसका सारा पानी बाहर निकाला, उस पॉट को ड्राई किया, क्लीन किया और इस तरीके से रखा कि उसमें दोबारा पानी ना भर पाए. So Jaskirat said, Shazia auntie told me that even flies spread disease, especially stomach problem. But fly don't bite. Then how do they spread disease? जसकीरत ने कहा कि उसकी किसी आंटी ने ये बताया था कि फ्लाइज मीन्स घर की जो मक्खियाँ होती है, हाउस फ्लाइज, दे ऑल्सो स्प्रेड दे ऑल्सो स्प्रेड डिजीज स्पेशली स्टमक प्रॉब्लम. तो रजत ने कहा कि जो फ्लाइज होती है वो तो बाइट नहीं करती, तो वो कैसे डिजीज़ स्प्रेड करती हैं? सो स्टूडेंट्स, हियर आई टेल यू हाउ डू flies spread disease. Sometimes you see that some carts are selling the food street and they do not cover up their food item. So the fleas which live in the dirty places, they set on the food item, and the germs which is stick on their legs, they are released in the food item, and after that the germs are eating the food item and reproduce their self, means they grow their self. And when we eat the food item we also get a stomach pain because with the food item we intake germs also. That's why we have started a stomach pain and food poisons also, like, and many disease like cholera, dysentery, diarrhea, that all the disease which has happened and which
which is caused by the fleas. So that's why every time you have to alert that don't eat the roadside food items which is not कवर्ड. वो फूड आइटम नहीं खाने चाहिए जो रोड साइड पे विदाउट कवरिंग रखे गए हों, बिकॉज यू नो फ्लीज जो होते हैं वो ऑलवेज डर्टी प्लेस पे ही रहते हैं. सो वहाँ से उनके लेग्स में सारे जो जर्म्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो कि हमें खुली आँखों से नहीं दिखाई देते, उनके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. सो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्लाइज के लेग्स में स्टिक हो जाते हैं, मीन्स चिपक जाते हैं. और जब वो फ्लाइज उन रोड साइड फूड आइटम पर बैठती है तो वो सारी जर्म्स उन फूड आइटम में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं. फिर वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं. एंड व्हेन वी टेक दैट टाइप ऑफ फूड आइटम वी गेट स्टमक पेन, डायरिया, कॉलेरा, डिसेंट्री मीन्स लूज मोशन, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं. सो फ्लाई इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेड मैनी काइंड ऑफ disease. So here in your page number 74 from your textbook, a scientist peeps into a mosquito's stomach. एक साइंटिस्ट ने मॉस्किटो के स्टमक में भी झांक के देखा था. So this interesting incident took place almost 100 years ago. A scientist found that mosquitoes spread malaria. Let's read about this discovery on his own word. My father was a general in the Indian Army. I studied to become a doctor, but what I really liked was reading stories, writing poetry, music and drama. In my free time, I enjoy doing all this. So यहाँ पे एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है रोनाल्ड रोज. दिस इज द साइंटिस्ट, हिज नेम इज रोनाल्ड रोज. सो उन्होंने जाना था कि मॉस्किटो ही मलेरिया को फैलाती है. सो उन्होंने अपने बारे में एक छोटी सी स्टोरी लिखी, या कह सकते हो कि अपने बारे में एक बायोग्राफी लिखी. उन्होंने बताया कि उनके फादर आर्मी में जनरल थे और वो डॉक्टर बनना चाहते थे. कौन? रोनाल्ड रोज. लेकिन उनका जो इंटरेस्ट था वो स्टोरी लिखने, स्टोरी पढ़ने, पोइट्री लिखने में, म्यूज़िक और ड्रामा में था. तो जब वो खाली रहते थे तो वो यही सारी चीज़ें करते थे. क्या करते थे? स्टोरी लिखना, घूमना, म्यूज़िक, पोइट्री करना. So in those days, thousands of people used to die from a disease that we now call malaria. The disease was found in area where there was a lot of rain in a swampy place. People thought that the illness was caused by some poisonous gas that come from the dirty swampy area. So in the online class I told you about the meaning of swampy. So you have to comment in this video that what did you mean by the swampy. So let's continue. They gave it the name malaria, which means bad air. One doctor has tiny germs in the blood of one of patients. When he observed it under a microscope, but he could not understand how this had got into the patient blood. जब रोनाल्ड रोज फ्री टाइम में सारी मस्तियाँ करते थे, वो डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहे थे, तब उस वक्त बहुत सारे एटलीस्ट 1000 ऑफ पीपल्स की मौत हो रही थी. और वो उसका रीज़न था मलेरिया, जिसे हम अभी मलेरिया के नाम से जानते हैं. सो वो डिज़ीज़ उस जगहों पर ज़्यादा हो रहा था जहाँ पे बहुत सारी बारिश होती थी और स्वैम्पी प्लेस होते थे. नाउ यू हैव टू टोल्ड मी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्वैम्पी. ओके, मैंने ये आपको बताया था, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि स्वैम्पी का मतलब क्या होता है हिंदी में. सो पीपल ने कहा कि यही रीज़न हो सकता है कि उस स्वैम्पी प्लेस से एक पॉइजन गैस निकलती है जिसका नाम उन्होंने मलेरिया रखा. मलेरिया का मतलब होता है बैड एयर, गंदी हवा.
इस एक डॉक्टर ने पेशेंट का जब ब्लड निकाला था और उसके माइक्रोस्कोप में रख के देखा था, तब उन्होंने जाना था कि एक जर्म्स होते हैं जो उस ब्लड में हैं, लेकिन वो थोड़े से कंफ्यूज थे कि एटलीस्ट वो पेशेंट के अंदर ब्लड में कैसे गया. So my professor had some idea about this. I think that this may be carried by some kind of mosquito. As his student, I spent all my time chasing mosquitoes to catch and observe. We used to carry empty bottle and chase mosquito after mosquitoes. Then we would put the mosquito in a mosquito net in where there was a patient of malaria. The mosquito would have a feast biting this patient. The patient were paid 1 आना for allowing one mosquito to bite them. सो उसके जो प्रोफेसर थे, रोनाल्ड रोज के जो प्रोफेसर थे, उन्होंने ये तो सोच लिया था कि ये कहीं ना कहीं किसी टाइप्स के मॉस्किटो के से ही आता है. सो जब रोनाल्ड रोज स्टूडेंट थे अपने प्रोफेसर के, तो वो सारा दिन सिर्फ मॉस्किटोज़ को पकड़ने में लगा देते थे. वो खाली बॉटल के अंदर मॉस्किटोज़ को पकड़कर लाते थे और फिर उन्हें एक मॉस्किटो नेट में डाल दिया जाता था जहाँ पे ऑलरेडी पेशेंट थे. सो इट वुड हैव अ फीस्ट फॉर द मॉस्किटोज़ टू बाइटिंग दिस पेशेंट. ऑल द मॉस्किटोज़ वेयर बाइट दैट पेशेंट एंड उस पर्टिकुलर पेशेंट को एक मॉस्किटोज़ के बाइट पे 1 आना, उस वक्त जैसे कि अभी हमारे टाइम पे 1 रुपया चलता है, वैसे उस वक्त आना चलता था. तो पेशेंट के मॉस्किटोज़ के हर एक बाइट पे पेशेंट को 1 आना दिया जाता था. सो आई ऑलवेज Ronald Rose share their story that I always remember those days at the hospitals in Sikandrabad, how we used to cut open the mosquito stomach and peep into it. I would spend hours and hours bent over the microscope. By night my neck would be stiff and my eyes could not see clearly. I used to be very hot, but we dared not fan ourselves, as all the mosquitoes would fly off in the breeze. Once I also fell it with malaria. सो उस वक्त के बारे में बता रहे हैं जब वो सिकंदराबाद के हॉस्पिटल पे ड्यूटी कर रहे थे. उस वक्त वो मॉस्किटोज़ के स्टमक को कट करके देखते थे. आवर्स एंड आवर्स मॉस्किटोज़ के साथ माइक्रोस्कोप के साथ बिताते थे. उनका जो नेक था वो स्टक हो जाता था, उनकी आइज़ देख नहीं पाते थे. इतना ज़्यादा टाइम उनको इतनी मॉस्किटोज़ के में साथ बिताना पड़ता था. वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती थी, लेकिन वो फ़ैन भी ऑन नहीं कर सकते थे. इवन ये एक्सपेरिमेंट करते हुए वो भी मलेरिया से इफ़ेक्ट हो गए थे. सो आई स्पेंड मंथ्स लाइक विथ द माइक्रोस्कोप बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग. One day we caught a few mosquitoes that looked different. They were brownish with spotted wings. When I looked into the stomach of one of the female mosquito, I saw something black there. I looked closer. I saw that this tiny germ looked just like one that were found in the blood of malaria patient. At last, we have the proof mosquito did spread malaria. सो वो बहुत सारे मंथ उन्होंने स्पेंड किए थे माइक्रोस्कोप और मलेरिया के साथ, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला. बट कुछ दिन बाद उन्होंने जो वो एम्प्टी बॉटल्स पे मॉस्किटोज़ पकड़ते थे, उसमें उन्होंने देखा कि एक फीमेल मॉस्किटोज़ को देखा था जिसका कलर डिफरेंट था, उसके विंग्स में स्पॉट्स थे. सो जब उन्होंने उनका प्रैक्टिकल किया, तब उन्होंने देखा कि उनके अंदर कुछ समथिंग ब्लैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जो कि सेम उस मलेरिया के पेशेंट के ब्लड में था. सो एट लास्ट इतनी मेहनत के बाद उन्होंने प्रूफ कर लिया दैट मॉस्किटोज़ डिड स्प्रेड मलेरिया. सो इन December 1902, Ronald Rose got the highest award for his discovery, the Nobel Prize for Medicine. In 1905, even as he lay dying, Rose's last words were, "I will find something, I will find something new." 1902 में रोनाल्ड रोज को हाईएस्ट अवार्ड जो कि है नोबेल प्राइज़, उनको मेडिसिन
के फील्ड में मिला। 1905 में जब रोनाल्ड रोज की डेथ हो रही थी तो उनके लास्ट वर्ड भी यही थे कि आई विल फाइंड समथिंग न्यू। मैंने कुछ खोजा और मैंने कुछ नया खोजा। So here student, your chapter number 8, a treat for mosquito, is completed. Now you have to give the answer of the meaning of swampy. What did you mean by swampy? And also give the meaning of swampy in Hindi in the comment section. And if you seen the video, you have to press like button, and thanks for watching, and subscribe my channel for new videos.